Hello everyone, welcome to our new lecture. Okay, we are learning chapter number 6, that is substances in daily use. In the previous lecture, we have seen one of the important substance that we use daily and it was paper. Now in this particular lecture, we are going to deal with the substances, okay, which is made up of fibers, okay, or which is nothing but thread, okay. So let us see how the thread is manufactured in a factory. So, from the time it was first thought that artificial yarn could be produced to meet the clothing needs of an increasing population, much research and progress has taken place in this field. Previously, we used cotton or silk, okay, which was obtained naturally, but okay, after some time, we have thought to make artificial threads, artificial yarn, okay, so as to meet the need, okay, of clothing, okay, for the increasing population. So for that purpose, a lot of research was carried out, and due to that research, we have seen the progress in this field of thread fabrication. Innumerable kinds of synthetic or artificial threads are now available. Okay, for example, nylon, dacron, terylene, polyester, rayon. These are the names of various synthetic threads. Okay, so नॉर्मली जो कॉटन या फिर सिल्क जो नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता था, जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता था थ्रेड्स बनाने के लिए, धागे बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद आर्टिफिशियल यार्न तैयार किया गया। ओके, आर्टिफिशियल थ्रेड्स जो है वो बनाए बनाए गए। ओके, एग्जाम्पल क्या दिए हुए यहाँ पे, नाइलॉन, डैक्रॉन, टेरिलीन, टेरीन, पॉलिएस्टर, रेयॉन। ओके, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक थ्रेड्स के एग्जाम्पल है। ओके, नाउ अगर हम लोग सिल्क की बात करेंगे तो हमें मालूम है कि ये नेचुरली अवेलेबल होता था और ये नेचुरल थ्रेड था। ओके, जिसे हम लोग ऑब्टेन करते थे सिल्क वर्म से। ओके, सो जो कोकून्स होते हैं सिल्क वर्म के, उसमें उसमें से आपको ये सिल्क ऑब्टेन होता था। क्या आपको पता है कि एक कोकून से 500 मीटर से 1300 मीटर लंबा थ्रेड बनाया जा सकता था? कितना? 500 मीटर टू 1300 मीटर long thread was obtainable, okay, from a single cocoon. It is said that silk was first produced on a large scale in China. तो सबसे पहले सिल्क कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था? चाइना में प्रोड्यूस हुआ था। Okay. Now almost all the articles made from natural fibers in the olden days can now be made from synthetic threads. जो जो भी फाइबर्स, जो भी क्लोथ्स या फिर जो भी मटेरियल जो नेचुरल फाइबर्स से बनाए जाते थे, वो आज के दौर में हम लोग सिंथेटिक थ्रेड से भी बना सकते हैं। ओके, now nylon, rayon, terylene, acrylic are all synthetic threads, and many articles in our daily use are made from them. So one by one we are going to see all these synthetic fibers. Okay, so nylon. This thread were invented at the same time in New York and London. एक ही टाइम पे न्यूयॉर्क और लंदन में ये जो थ्रेड है नाइलॉन वो इन्वेंट हुआ था। ओके, therefore the initials NY of the New York and LON from London were combined to name the nylon. नायलॉन का जो नाम है वो कैसे रखा गया है? देखो, NY जो है न्यूयॉर्क का NY वो लिया गया है स्टार्टिंग में, और लंदन का जो LON है वो लिया गया है उसके बाद, और हमें क्या मिला है? नाइलॉन मिला है। सो दिस इज द रीजन ऑफ नेमिंग दिस पर्टिकुलर सिंथेटिक फाइबर। Nylon threads have a shine and strong, transparent and water resistance. Okay, so जो नायलॉन के थ्रेड्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके, जिनके आर पार हम लोग देख सकते हैं, ऐसे थ्रेड्स होते हैं, और वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर क्लोथ्स, फिशिंग नेट्स, रोप्स एक्सेट्रा। क्या क्या बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? नायलॉन का इस्तेमाल होता है क्लोथ्स बनाने के लिए, फिशिंग नेट्स बनाने के लिए, और रोप्स बनाने के लिए। Okay, now next is rayon. Okay, so cotton and wood pulp is dissolved in a chemical called sodium hydroxide to make a solution. देखो, कॉटन को और वुड पल्प को डिसॉल्व किया जाता है केमिकल में, और वो केमिकल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, थ्रेड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। फिर उसी उसके बाद इसी सोल्यूशन से थ्रेड तैयार किए जाते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। As these threads have shine in strength, they are said to be synthetic silk. ओके, ये जो थ्रेड्स होते हैं उनके पास वो शाइनी भी होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, इसलिए उन्हें सिंथेटिक सिल्क भी कहा जाता है। दे अपीयर टू बी शाइनिंग ब्राइट लाइक द सन्स रेज
ओके, हेंस द नेम they were named as rayon. उनकी जो शाइनीनेस होती है वो सन सूरज के किरणों की जैसी होती है, इसलिए इन्हें रेयॉन भी कहा जाता है. Now next is Dacron, Terylene and Terene. So various hydrocarbons obtained from mineral oils are used to make polymer chains. अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम ऑब्टेन करते हैं मिनरल ऑयल से. ओके, उनसे हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमर चेन्स क्रिएट करते हैं. A solution of such a polymer is pressed through a strainer with fine holes. ओके, फिर इसी सोल्यूशन को हम लोग स्ट्रेस करते हैं, ओके, स्ट्रेनर की मदद से, और हमें वहां पे आप फाइन होल्स जो है वो भी क्रिएट होते हैं. द फाइबर्स फॉर्म्ड आफ्टर कूलिंग आर लॉन्ग एंड अनब्रोकन थ्रेड्स. जो फाइबर कूल होते हैं, कूल होने के बाद जो फाइबर फॉर्म हुए हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग और अनब्रोकन थ्रेड्स होते हैं. दिस थ्रेड्स आर ट्विस्टेड टू ऑब्टेन yarn. Okay, different types of chemicals are used to make threads of various properties. These different threads have been named variously as Tecron, Terylene, Terene, etc. Okay, so ये सब क्या है, आर्टिफिशियल थ्रेड्स के एग्जाम्पल है. ना न्यू वर्ड्स जो आप लोग ने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में स्टडी किए हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स और पॉलीमर चेन्स. सो हाइड्रोकार्बन्स क्या है, देखो ऐसे सब्सटेंसेस है जो हमें मिनरल ऑयल से मिलता है. इसका अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन का, इट इज अ कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन इज प्रेजेंट. ओके, सेकेंड टर्म है polymer chains. So it is a long continuous chains which is formed by small interlinked chemical units. Okay, इसे हम क्या बोलेंगे, polymer chain बोलेंगे. आप लोग देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल थ्रेड का जो यूज है, एप्लीकेशन है, वो बहुत ही वाइड है. अलग अलग सब्सटेंसेस में, अलग अलग मटेरियल्स में इनका इस्तेमाल होता है. Now let us see what is the advantage and shortcomings, that is disadvantage of using a synthetic fiber, okay, or synthetic thread. So advantage देखो क्या है, this fibers can be manufactured on a mass scale. बहुत ही लंबे तादाद में, बहुत ही ज़्यादा तादाद में हम लोग इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. इनका जो कीमत होता है वो बहुत ही कम होता है, दे कॉस्ट लेस. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. स्ट्रॉन्ग होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स और ड्यूरेबल भी होते हैं. मतलब ड्यूरेबल मतलब क्या, बहुत लंबे समय तक टिक सकते हैं. दे कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, दे आर वाटर रिपेलेंट, हेंस डू नॉट रॉट और गेट वेट. आसानी से भीगते नहीं है, गीले नहीं होते और खराब नहीं होते, और अगर गीले हुए हैं तो आसानी से सूख जाते हैं. दे आर लाइट वेट एंड कंफर्टेबल टू वेयर. हल्के होते हैं और पहनने के लिए कंफर्टेबल होते हैं. एज दे हैव अ शाइन दे एनहांस द अपीयरेंस ऑफ द वेयरर. ओके, शाइनी होते हैं, इस वजह से जो भी उसे पहनता है उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो निखर के बाहर आती है. Clothes made from these threads are wrinkle free and scratch free. Okay, scratch free clothes होते हैं, wrinkle free clothes होते हैं जो synthetic fiber से बनाए जाते हैं. Shortcomings क्या है देखो, as they are water repellent, hence do not absorb sweat from the skin. वाटर रिपेलेंट होते हैं, पानी को वो रिपेल करते हैं. इसका मतलब क्या है कि जो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसको वो लोग एब्जॉर्ब नहीं करते. कंटिन्यूस यूज ऑफ क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस थ्रेड्स कीप द स्किन मॉइस्ट विच में कॉज स्किन डिजीजेस. अब जैसे कि वो स्वेट जो पसीना है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, इस वजह से हमारा जो स्किन होता है वो मॉइस्ट रहता है और इस वजह से स्किन डिजीजेस हो सकते हैं हमें. सिंथेटिक क्लोथ्स आर अनकंफर्टेबल टू वेयर स्पेशली इन समर. लेकिन समर सीजन में और भी ज़्यादा पसीना निकलता है और इस वजह से सिंथेटिक क्लोथ जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं समर सीजन में. सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर इजीली. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें आग बहुत ही आसानी से लग सकती है. इफ दे कैच फायर द क्लोथ स्टिक्स टू द स्किन एंड कॉजेज सीरियस इंजरीज. और अगर आग लग गई है तो फिर वो जो क्लोथ होता है, जो फाइबर होता है, वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है हमारे स्किन को और बहुत ही खतरनाक घातक इंजरीज हमें हो सकती है. दिस फाइबर्स आर नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और ये जो फाइबर्स होते हैं वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए. इसका मतलब क्या है कि अगर उसे एक बार यूज करने के बाद हम इसे अगर फेंक दे तो वो डिकम्पोज नहीं होंगे और वो क्या करेंगे, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे. So these are the shortcomings of using synthetic fiber. So in this lecture we have seen certain materials, okay, certain substances which are used regularly, okay, which are used on a regular basis. So we have gone through different types of substances. Okay, for example we have seen rubber, okay, production of rubber. Then we have seen the production of paper, and at then we have seen the production of synthetic fibers. Okay, so this is all in this particular chapter. We have completed this chapter. Now in the next lecture we will start try to understand the
new chapter from the same subject. Okay. For this particular lecture, you will have a homework, and your homework is you have to write down this exercise in your notebook. Okay. So we'll meet in the next lecture. Until then, goodbye.